I'm Salma Khan, founder and CEO of Leonard Styling and Grooming Experts, a philanthropist by choice, and an international pageant winner. I welcome you all in the celebration of the first episode of Spirit of Women. We are all here to celebrate and to discuss the reproductive rights of a woman. This is an initiative by us to educate the women about their rights, because there are many females who don't know, but they are taking forcefully the pills, the medications. They are not even aware that it is not safe to go for the abortion. So our alternative motive is to make them educate and aware them about their rights, whether it's been the genital mutation, whether it's been the right of their spouses related to the pregnancy, whether it's been the education related to their pregnancy, whether it's been the education related to the legal rights, whether it's been the safe and legal abortion. So we are here to discuss all these topics with the given personalities, with the respective fields. They have their own sacrifices, they have their own victories, they have their own experiences about it all, and who are there to speak up, to raise their voice, to make you aware and to make you learn that how you can face it and how you can stand up for your own rights. We are organizing a show which we named Women's Reproductive Rights. For that, we have different personalities of females from different fields. Today we have with us Janak Paltaji, the famous social worker, Arya Sanyal ma'am, the director of the airport, Rashmi Gupta, Vice President of Lions Club Lions Organization, then Dr. Shweta Jha from medical field, and Pratiksha Nair, the Malvi Bhabhi, and Shweta Bajaj from La Colors, the entrepreneur. So here we are to start with the rights of a woman, being the mother, being the pillar of your family, having all the rights to educate the society, to grow the society, to make a better tomorrow of the society. So ma'am, you are the senior most among all of us. So first of all, I would like to hear from you your point of views about the legalities of this reproductive rights. Because when we see there are many females who are taking the pills, but they even don't know the legality of the abortions, how this is safe and how this should be and shouldn't be. So please make a light on. हमारे महिलाएं शिक्षित शायद नहीं है, और शिक्षित कम होने के नाते उनको उनके अधिकार के बारे में पता नहीं होता है। और पुरुष प्रधान समाज में अक्सर ये माना जाता है जो बीवी है, जो पत्नी है, जो गर्लफ्रेंड भी है, उसको बस सुनना ही है। ये धीरे धीरे शायद अभी बदल रहा है। उस पे एक भागीदारी पुरुष का भी चाहिए महिलाओं के साथ, क्योंकि एक शिशु का जन्म देना जो रिप्रोडक्टिव राइट है वो समान है, एक पुरुष का भी है, एक महिला का भी है, और दोनों मिलकर तय करना उचित होगा। और उसका जब एक बच्चा पैदा होता है तो शारीरिक रूप से जो संवेदना एक महिला को झेलना पड़ता है, क्योंकि करीब करीब 1 वर्ष से 2 वर्ष तक उसको वापस उस शरीर को रिकंस्ट्रक्ट या रिकूप करने में समय लगता है। मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक माँ जरूर हूँ, और मेरा माँ होने का अनुभव से मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जब सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था तो 1-1.5 साल मुझे लगा था वापस बैक टू द नॉर्मल होने में। तो मान लीजिए कई बार हम देखते हैं कि एक शिशु के बाद अचानक 2 साल के अंतराल में एक और शिशु, उसके बाद 2 साल के अंतराल में एक और शिशु, तो उस महिला का जो शारीरिक क्षमता, इम्यूनिटी, और अभी तो कोविड सिचुएशन चल रहा है तो इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। तो उसलिए उसका जो अधिकार है ये बहुत आपने महत्वपूर्ण और बहुत ही मैं समझती हूँ एक रियल इशू आपने आज जो है सबके सामने रख रहे हो
कि इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए कि एक महिला का क्या क्या अधिकार है। लेकिन कई बार क्या होता है, अधिकार आप कैसे समाज के सामने, परिवार के सामने उसको रखते हो, उसके ऊपर आपकी शांति भी निर्भर करते हैं। मान लीजिए एक पति को अपना जो उसका वाइफ वो अगर बोले कि ये मेरा अधिकार है तो मैं अबॉर्शन करा रही हूँ, तो शायद उनकी दाम्पत्य जीवन में अनबन हो जाए जी। तो इसीलिए मेरा पहले ये कहना है कि शादी से पूर्व ये काउंसलिंग होना चाहिए, जो हमारे समाज में शायद नहीं है। दोनों की शरीर फिजिकल लिबर्टीज है, वो लिबर्टीज दोनों को बताना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, निजी ओपिनियन। Absolutely, ma'am. That's a very valid and I think it's a very important point that people should know about it. कि आपके जो भी स्पाउस हैं, आप अपने स्पाउस से बात करें और उनके साथ ये काउंसलिंग लें कि आखिर आप दोनों के अलग अलग अधिकार क्या हैं। एक फैमिली जो साथ में चलेगी वो तभी चल सकती है जब एक पुरुष और एक स्त्री दोनों की सोच एक साथ हो, दोनों एक तरीके से अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो we are very thankful to hear it from you, ma'am. So this is very important point. Now I would like to ask Rashmi ma'am. Rashmi ma'am, जैसे कि आप एक समाज सेविका हैं and you've been to all like internationally, you have won so many medals and all. So I just wanted to know कि how it differs in India. Like अगर हम जब इंडिया की बात करते हैं तो हमारे reproductive rights different क्यों हो जाते हैं? Because we always need a permission, we always seek authority to go with us. So उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इसको कैसे एड्रेस करती हैं। जनरली बहुत सारे महिलाओं के अधिकारों की बातें, संघर्षों की बातें वुमेंस डे पर ऑर्गेनाइज की जाती हैं और होती भी रहती हैं, पर रिप्रोडक्टिव राइट जो वुमेन का है, जनरली हम, जैसा कि मैडम ने भी बताया है, हम उसे एक बेबी को बर्थ देने की का राइट हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसको समझते हैं। एज सोशल वर्कर जो हम लोग देखते हैं, जब हम जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कमी हमें नज़र आती है वो एजुकेशन की होती है। क्योंकि जब स्लम एरियाज़ में जाते हैं, हम जैसे लोग तो काफ़ी एजुकेट होते हैं, पर स्लम एरियाज़ में जब जाते हैं या ऐसी जगह पर जहाँ पर लेस एजुकेटेड वुमेन होती हैं, वो इस अधिकार को नहीं समझती। वो अधिकार पूरा उनके परिवार के ऊपर होता है कि उन्हें कब बच्चा पैदा करना है, कब नहीं करना है, कितने बच्चे पैदा करना है, लड़की है तो अबॉर्ट करना है, नहीं करना है, लड़का है तो क्या करना है। वो सारा अधिकार उनके पास सिर्फ इसलिए वो दे देती है क्योंकि वो खुद एजुकेट उसके लिए नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि यदि हम सोशल फील्ड में काम करते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता है इसके लिए जागरूक करने के लिए कि क्या वुमेन राइट, जो मानवाधिकार भी कहा जाता है, वो हमें इंडिया में, हमारे देश में दिए गए हैं। दूसरी बात और मैं एक ही चर्चा करना चाहूँगी कि हमारा जो सामाजिक संरचना है उसके अनुसार जो महिलाओं में जब गर्ल्स होती हैं उनमें जो होने वाले बदलाव हैं उनकी चर्चा भी हम आम तौर पर नहीं करना पसंद करते, और हमारे परिवारों में भी उसकी चर्चा नहीं होती है जो ऑलरेडी इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। यदि मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी बात करूं तो उसकी चर्चा भी हम जनरली करना, जैसे हम संस्कृति के या संस्कारों के खिलाफ जाना समझते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसकी है। यदि हम ये एजुकेट कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ा इसमें जो रिप्रोडक्टिव राइट है इसके अंदर हमारा एक बहुत बड़ा कदम होगा। बहुत सारे ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीजेज होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उसकी चर्चा हम लोगों को नहीं पता होती। वो लोग हाइजीन के लिए भी बहुत अवेयर नहीं होते जो डायरेक्टली इससे रिलेटेड होते हैं। यदि हम कुछ आंकड़ों पर विचार करें तो अगर हम देखें कि जो महिलाओं की डेथ जो होती है तो उसमें जितनी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, मान लीजिए 1 लाख महिलाएं जो रहती हैं, वो उनकी डेथ सिर्फ प्रेगनेंसी में किसी न किसी डिसीज़ की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से होती है जो उनको शिक्षा में नहीं सिखाया जाता। तो मुझे लगता है कि जैसे जब शादी होती है तो उस शादी के समय पर अगर आप में कोई इस तरह की डिसीज़ है, रिलेटेड है, तो उसकी यदि बात हम सामने वाले को नहीं बताते हैं तो वो उस पे हमें ब्लेम कर सकता है कि आपने नहीं बताया, तो ये एक आपने
अपराध किया है, अपराध की श्रेणी में रखते हैं, पर वही लोग उस बात की चर्चा नहीं करते, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की या मेंस्ट्रुअल रिलेटेड बदलावों की चर्चा नहीं करते, उससे अपराध मानते हैं बात करना भी। तो मुझे लगता है कि ये एक बदलाव आना बहुत ज़रूरी है कि हमें स्कूल में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें, जहाँ पर कि उस तबके के बच्चे भी आते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उस एजुकेशन की जो सेक्स से रिलेटेड हो, जिसकी बात हम समाज में करना नहीं चाहते, तो ये सब बातें उससे रिलेटेड डेफिनेटली होगी। HIV का भी यदि हम देखें तो उससे भी संक्रमित आज जितने परसेंट हम देखते हैं, मैडम को, डॉक्टर मैडम सामने बैठी हैं, उन्हें भी पता होगा उसके बारे में, तो उसमें 1/3 जो महिलाओं की जो संख्या है उसमें 1/3 भी एडल्ट वुमन होती है जो कि टीन एज वाली है, उनमें भी HIV का संक्रमण पाया जाता है। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी होना, मतलब हाँ, गवर्नमेंट को भी कुछ इस तरह के बदलाव अपनी शिक्षा प्रणाली के अंदर लेकर आना चाहिए जिससे हम अपने इन अधिकारों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएं और उसका हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Absolutely, ma'am. I would agree on this because when we talk about the sexual transmitted disease, this is a major issue. This is the major issue, especially in the villages, in the slum areas, because उनको पता ही नहीं है, not even about their menstrual cycle. They are not even aware to take it seriously. Like उन्हें ये तो पता है कि उन्हें किचन में नहीं जाना है, पर उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें वो इस पीरियड में अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, कितना इम्पोर्टेंट है एक proper balanced diet उनके लिए लेना to be a mother in the coming years. This is very important, which is really lacking, and this is the reason that we are together here to spread the words so that कि जितनी भी लोग, जितनी भी महिलाएं या पुरुष, specifically हमारा समाज जितना महिला से बना हुआ है उतना ही पुरुष से ही बना हुआ है, तो जब तक हमारे जो मेल है, जब तक वो आगे आकर इस फील्ड में नहीं आएंगे फॉर द एजुकेशन एंड अवेयरनेस, हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन है, they won't be able to accept it, they won't be able to educate it. क्लास 8-9 में बच्चों को सिखाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, व्हाट आर द लीगल राइट्स, आपका अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू नहीं, एजुकेशन, अधिकार क्या है, रिप्रोडक्टिव राइट के लिए मैं बोल रही हूँ। तो जब एक लड़का को भी मालूम पड़ेगा, लड़की को भी मालूम पड़ेगा, अब बाद में जाकर वो शादी करेगा तो वो उसको याद रहेगा, तो समाज में आप परिवर्तन ला पाओगे। वही मैं बोलना चाह रही थी कि अभी तक हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, पर उसके साथ में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटा समझाओ, ये वाली अगर हम तीनों चीज लेकर साथ में चलेंगे तो डेफिनेटली एक अहम बदलाव इसके अंदर आएगा। वेरी वेल सेड। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने पुरुषों को आगे लाएं कि आप ये अथॉरिटी लें, ये अकाउंटेबिलिटी लें, बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली। एज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, हमारे भारत की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले उनकी उस एजुकेशन को कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। जो आर्यमा मैम ने भी कहा, जो बिल्कुल सही है कि हम जब तक दोनों को एजुकेट नहीं करेंगे, दोनों के अलग अलग राइट्स उनको नहीं समझाएंगे, तब तक ये सब्जेक्ट पूरा नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे साथ है डॉक्टर श्वेता पॉल झा, एंड शी इज द स्पेशलिस्ट इन IVF एंड बोर्ड मेंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। सो डॉक, आपके व्यूज क्या हैं? बिकॉज जब हम बात करते हैं जेनिटल म्यूटेशन की, या जब हम बात करते हैं राइट्स टू द प्रेगनेंसी की, टू नो द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अ फीमेल चाइल्ड और अ मेल चाइल्ड, तो आप उसके लिए कैसे काउंसल करती हैं अपने पेशेंट्स को? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन हैं, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि दे हैव अ राइट फर्स्ट ऑफ ऑल कि एट व्हाट मैरिज दे, एट व्हाट एज दे वांट टू मैरी, एट व्हाट एज दे वांट टू हैव चाइल्ड, देयर फर्स्ट चाइल्ड, स्पेसिंग ऑफ बर्थ्स कितना करना है, एंड they cannot be forced to abort a female child, मतलब it is under their right. If anybody like mother-in-law or any relative is forcing, then she has a right कि वो जाके case file कर सकती है against all of the family members, because it is her right कि वो जो भी बच्चा conceive किया है, she can deliver that child on the basis of gender. Nobody can force her to abort the child. Women are not aware of their rights. I mean, I am a MBBS, MS, FNB, 13 years educated. मैंने भी आपके टॉपिक के बाद I read all this, to be very frank, because we are not aware कि what are our rights. हम लोग we are framed like this
कि बचपन से ही हमको पता है ऐसा करना है, शादी करनी है, एक बच्चा करना है, 2 बच्चे करने हैं, ऐसा करना है। तो जब मेरे जैसी एजुकेटेड एम्पावर्ड वुमेन इतनी इग्नोरेंट हो सकती है, तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर पीपल? True. और जैसे मैडम बोल रहे थे ना अबाउट अबॉर्शन, you know something, every day one female will come to our OPD and she will be requesting abortion, and that will be a very educated female. So that is the सबसे saddest part of it. You know, अभी last ही जो था, she was a doctor, her husband is a doctor and recently married, and then she conceived and she wanted an abortion. अब जब आप सोचो कि एक डॉक्टर के लेवल तक भी ये अवेयरनेस नहीं है कि व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन एंड हाउ शुड वी गो अबाउट इट एंड हाउ शुड वी प्रिवेंट एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, बिकॉज अबॉर्शन में देन यू नो देयर आर चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी, एंड अगर अनसेफ तरीके से कराया तो सेप्सिस एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर. सो आई एम टेलिंग यू द बेसिक थिंग इज अवेयरनेस इज लैकिंग, एंड मेल एंड इक्वल का मतलब इक्वालिटी तो है ही नहीं इंडिया में. वी हैव टू एक्सेप्ट इट. मान लीजिए 8-9 साल की उम्र से ये शिक्षा हमको देना चाहिए दोनों को एक साथ, और परिवार में कम से कम हमारे जनरेशन में, मतलब मेरा जनरेशन तो अब जाने वाला, आप लोग के जनरेशन में मैं कहूँगी, जब आप साथ बनोगी इस कमरे में, आप लोग जब साथ बनोगे तब उस चीज को, क्योंकि हम हमारे बच्चे को जैसे शिक्षा देते आगे जाके फैमिली भी, परिवार भी वैसे ही होगा. अगर उसको शिक्षा दिया जाता है कि आपका जो बेबी है वो आपका इक्वल पार्टनर है, उसका भी समान अधिकार है, उसका शरीर से एक बच्चा जन्म ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसका शरीर को आप जो है ना जोड़िए तो नहीं होने दे सकते. मेंटली फिजिकली एक लड़की जब बच्चा पैदा करती है वो अफेक्टेड रहती है, मेंटली ऑल्सो, साइकोलॉजिकली ऑल्सो. उसके बाद भी पूरी जिंदगी जो है ना, अगर वो उस बच्चा कहीं भी खराब करता है तो पिता उसको कहता है कि तुम्हारे पे गया, और जब अच्छा करते हैं तो बोलते हैं मेरे पे गया. अच्छे गुण तो है ना? तो उस चीज को समान अधिकार के दृष्टि से संवेदना के साथ अगर हम बचपन से सिखाएं, शायद मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरा एकदम विवर्तन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा विवर्तन की तरफ शायद हम वॉक करने लगे. Shweta is here, Mrs. Shweta Arora Bajaj, and she is the MD of La Colors Productions. So she is into more of activities like exhibition to empower women. Every time वो बहुत सारी कुछ activities करते हैं. तो Shweta, being the entrepreneur, like what are your views? Because आप एक फैमिली में, आपके हस्बैंड he is also very powerful man, and आप फिर कैसे वो सारे challenges को फेस करके अपने लिए समय निकालती हैं? या फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, हम लोगों को सब कुछ हमारे अंदर से स्टार्ट होता है. इफ व्हेन इट कम्स टू मी, मेरी शादी 20 इयर्स में हो गई थी, तो ये बहुत बहुत पर्सनल होता है कि इट्स वेरी कितने बेबीज करना है, कौन सी एज में करना है. फर्स्टली इट्स कम्स टू आवर हेल्थ, बट व्हेन इट कम्स टू मी, मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत है या सही, मेरी शादी जल्दी होगी. मुझे ऐसा लगता है आई एम ब्लेस्ड. मेरी शादी जल्दी हुई, मेरे बच्चे जल्दी हुए. आज मेरी बेटी नाउ शी इज इन कॉलेज, अभी वो क्लैट की तैयारी कर रही है एंड वो लॉ करने की प्रिपरेशन में है. तो मेरे बच्चे जल्दी हो गए, मैंने वो सब कंप्लीट कर लिया. नाउ आई एम डूइंग, आपके सामने हूँ, बिजनेस कर रही हूँ एंड हर चीज़ के लिए टाइम निकालती हूँ. बट मैं कभी क्रिप नहीं करती, बिकॉज ये मेरी इच्छा थी. नोबडी फोर्स मी टू डू 3 kids. आई एम मदर ऑफ 3 kids. मेरे को किसी ने फोर्स नहीं. आई ऑलवेज वांटेड 2-3 kids. आई वांट एक लाइवली माहौल अराउंड मी. भले मैं बहुत रहती हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ, बच्चों को देखना, घर देखना. आई कुक ऑल्सो, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ. तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं जो कर रही हूँ मैं उसे एंजॉय कर रही हूँ. नोबडी फोर्स्ड मी, नोबडी वांट मी टू डू 3 kids, 4 kids और 1 kid. ऐसा कुछ भी नहीं था. बट आई एम एंजॉइंग. मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लेडीज एक ही बच्चा कर रही है ये कुछ फैशन है. इट्स नॉट, ये उनका परसेप्शन है. दे आर राइट देयर ओन पार्ट. पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो पहले बुजुर्ग बोलते थे कि शादी जल्दी हो जाना, वैसे ही ढल जाती हैं लड़कियां छोटी एज में, मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल सही है. बाकी रिप्रोडक्टिव इट्स आवर पर्सनल डिसीजन. ये बहुत ही अपना है. सो ये अपने को ही डिसाइड करना है, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है. इट्स क्वाइट वेरी पर्सनल. Now being a mother of 3 kids, घर को भी मैनेज करना, काम भी करने. Now question is how you are doing this? Yeah, right. Like we have Pratiksha ma'am over here, our charming Balvi bhabhi. So like अगर हम प्रतीक्षा मैम की बात करें तो मैम like आपका एक बहुत
बेसिक इंस्टिंक्ट है अबाउट योर वर्क, बिकॉज दैट इज योर चॉइस कि आप जो बात करती हैं, आप जो मैसेजेस देती हैं, जो आप मूवीज बनाती हैं, तो दैट इज ऑल फन फॉर यू, एंड विच इज अ बेसिक राइट ऑफ अ वुमन टू बी हैप्पी, टू वर्क, टू बी इंडिपेंडेंट, करेक्ट? तो आप उसको कैसे एड्रेस करोगे हमारे लिए? अरिमा जीजी ने हिंदी में बोली थी और रश्मि जीजी ने हिंदी में बोली थी, निकोल जीजी ने अपना अंग्रेजी में समझाई थी। तो हमारी जिम्मेदारी बने है कि बीइंग अ मालवी भाभी, मैं मालवी लैंग्वेज में आपके समझाऊं सबके, ताकि अगर गांव में भी कोई ये वीडियो देखेगा तो गांव की औरतें उनके भी समझ में आना चाहिए कि भाभी कहीं बोल रही है कि नहीं। तो मैं मालवी में ही बोलूंगा, थोड़ी बहुत जो भी हमारे इन विषय पे समझ में आई है बात हो कि कानून जो है वो तो ठीक है, एजुकेशन जो है वो भी ठीक है, लेकिन एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी बने है अपना समाज की। मैं अपना घर से आपके उदाहरण दूंगा कि हमारी जो मम्मी है, वे जब 15 साल की थी तो हमारा बड़ा भैया पैदा हो गया था। सोचो आप 15 साल की उम्र में एक बच्ची की वेदना, और या पहला का जमाना में शायद गांव-गांव में एक एक औरत की पीड़ा थी कि 13, 14, 15 साल में औरतें माँ बढ़ी जाती थी। तो मतलब अभी भी अपन अगर गांव में सुदूर गांव में अंदर जाएगा तो ऐसा बहुत सारा केस आपके देखने के मिलेगा कि छोटा उम्र में बच्ची और माँ बढ़ी जाए और उनका ऊपर दबाव रहे, पूरा प्रेशर रहे परिवार को, समाज को कि मतलब भाई अब इनकी शादी हो गई है, अब बच्चों कब होएगा बच्चों, मतलब कोई भी मिलेगा आपस में लोगों तो कहीं हो नहीं कहीं अभी तक, वो भाई 2 साल हो गए कि तो अभी तक कहीं नहीं हुआ। पेड़ पौधा उनके भी हक है कि कब वे फल फूल देगा, जब अपन उनके खाद पानी डांगा, बीज डांगा, जब उनके हक है कि वे जब भी देगा फल फूल। जानवर उनके भी हक है कि भाई उनकी एक एज हो जाएगी, एक आयु हो जाएगी और एक सीजन में उनके मेटिंग करना है, पर औरतें उनके कहीं हक नहीं। उनके जब बोल दियो परिवार ने कि आपके बच्चों पैदा करना है तो आपके बच्चा पैदा करना ही है, आपके जब पति ने बोल दियो तो आपके मेटिंग करना ही है, उनको यो भी कहीं हक नहीं। तो यो औरतें उनकी मशीन नहीं है बच्चा पैदा करने की, सबसे पहली बात तो यह। तो एक एज का बाद जब एक निश्चित आयु हो जाए उसका बाद औरतें उनके बच्चा पैदा करने को हक होना चाहिए। तरह तरह से जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं इनके भी टाइम पे ऐसा कार्यक्रम करता रहना चाहिए जिससे समाज खुद जागृत हो और वे औरतें उनका हक के लिए खुद ही खड़ा हो जाए। इतनी सब कानून उनकी और इतनी डॉक्टरी की और इतनी दवाई उनकी अपने जरूरत ही नहीं पड़े, है कि नहीं? समाज जब खुद ही अपना जागृत हो जाएगा तो फिर ऐसी बुराई उनसे अपन निश्चित बहुत जल्दी से पार पा सकेंगे। It's a very valid and basic thing जो आप कह रही हैं। और हमारी मदर मतलब 15 साल की उम्र में पहली बार माँ बनी रही थी, उसके बाद उन्होंने हमारा सही 4 बच्चा उनके जन्म दियो और 26-27 साल की आयु में उनकी जो पीरियड साइकिल था वो बंद हुई गया। उसके बाद उनको यूट्रस का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उनकी आज इतनी समस्या है हड्डियों से रिलेटेड, क्योंकि आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा तो अंदर ही अंदर गंदो खून जो आपके शरीर में है वो बाहर नहीं निकलेगा आपको, तो आपकी हड्डियों तो वैसे ही गली जाएगी। तो मतलब औरतों की कितनी वेदना हुए ना, कितनी उनकी तकलीफ झेलनी पड़े है। कि स्लम में जाकर जब हम काम करते हैं और वहाँ का लाइफस्टाइल देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वहाँ पर अवेयरनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब हम अपने जैसे लोगों के बीच में बैठे, इसके अंदर ही ये जागरूक जरूरत है। कुछ हम लोग एजुकेटेड पर्सन है जो लोग मतलब इस चीज को समझते हैं, बट सब कोई लेडीज नहीं। जो मैडम डॉक्टर मैडम ने बोला वो बिल्कुल सही बात है कि हम भी अवेयर तब ज्यादा हुए जब हमने सब्जेक्ट देखा, जरूरत लगी, तो हमें लगा कि ये तो सच में इसको देखना चाहिए कि क्या है, क्योंकि हम अपने लेवल पे अवेयर नहीं है। तो जब हम बस्तियों में जाने की बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण वाली जब बात हम सोचते हैं तो वहाँ पर जागरूकता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन या हम खुद अगर जागरूक लोग हैं तो हम जितने लोगों को इसलिए अवेयरनेस कर सकें, कितनी तरह से कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, फिजिकली वहाँ रिप्रेजेंट होके कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट के जो भी उनके कानून हैं या उनके जो लीगल बातें हैं वो सब उन्हें बता सकते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं अवेयरनेस करना लगातार और 1-2 बार नहीं, वो बहुत कंटिन्यूटी में अलग अलग तरह से होना आवश्यक है, तभी वो इम्पैक्टफुल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। रिप्रोडक्टिव राइट्स का साथ साथ औरतें उनका रिप्रोडक्टिव कर्तव्य भी बने जी है नहीं जी। आजकल कई वीडियो है कि भाई औरतें हमारे तो करियर बनाना है, हमारे विदेश जाना है। 40 साल की उम्र के बाद भी 40 साल की बाद आजकल की लड़कियों में ये हो गया है कि ये फैशन है, वी डोंट वांट एनी किड, सो नाउ यू लोगों ने ऐसा कंप्लीट माय थिंग। आजकल की औरतें उनका ही करी रही है कि फैशन में भैया ऐश्वर्या राय ने 40 साल का बाद बच्चों पैदा करी हो, यानी शिल्पा शेट्टी ने इतना साल का बाद करी, तो मैं भी भाई 40 साल का बाद करूंगा, तो आपको आने वाले जो बच्चों है उनका ऊपर कई असर पड़ेगा, ने उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, ने कितना आजकल केसेस हुई रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है बच्चों में। And everybody is not Aishwarya Rai or Shilpa Shetty to have those facilities. They have their own They lifestyle, they have so many things. They have facility and they are also having problems. Absolutely. वो आपको नहीं पता चलेगी कि वे कई प्रॉब्लम उनके हुई है। Absolutely.
सेकंड थिंग आजकल बोलते हैं कि 35 to 40 के बीच में अपनी पूरा साइकिल चेंज हो जाता है। वेरी वही ट्रू, भी है। हो जाता है। अभी ठीक है, लेकिन आप puberty कैसे जो है, बताते I think हैं? he can confirm, इसमें- बहुत Yes. कम उम्र में menstruation चालू हो जाता चालू हो है। जाता है। चालू हो जाता है, पहले से जल्दी होता है। एंड भी हो जाते हैं। जी। आजकल फीमेल्स आर अवेयर एंड इफ दे हैव अ राइट कि भाई दे वांट टू हैव अ लेटर प्रेगनेंसी और समथिंग, तो जो एग फ्रीजिंग की फैसिलिटी है वो आजकल मुझे लगता है हर सिटी में अवेलेबल है, मतलब इंक्लूडिंग इंदौर, इवन एट आवर सेंटर, एंड इट हैज गॉट एक्सीलेंट रिजल्ट्स एज वेल। तो मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि ये उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स का ही एक चीज है हिस्सा जिसको है, वो ये एक हाईलाइट हिस्सा करना है। चाहिए कि वो भी अपने कैरियर में पीछे ना रहें। अगर उन्हें लग रहा है कि 30 से पहले उन्हें एग फ्रीज करने हैं तो दे कैन गो फॉर एग फ्रीजिंग एंड दे कैन परस्यू द कैरियर। जब उन्हें पार्टनर मिले तब शादी कर ले, जैसे डायना हेडन का भी ऐसे ही हुआ था, एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। सो मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम उन्हें भटकाना चाहते, बट दीज ऑप्शंस आर देयर, सो यू नो दे कैन गो फॉर सच No, ऑप्शंस। but- मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी, मैं रश्मि जी का समर्थन करते हुए एक चीज मेरा ओपिनियन है, आप लोग अभी जो बोले हो सब कुछ शहरी महिलाओं के लिए है। शहरी महिला फिर भी शिक्षित है। आप गांव में अगर जाएंगे उनको या ये सच्ची चीज़ में नहीं जिनको, पता होगी, उनको ये समझने में 10 साल जिनको लग कुछ जाएंगे। भी शिक्षा नहीं है, जिनमें जो सास ने बोल दिया, ससुर जी ने बोल दिया या समाज ने बोल दिया, पति ने बोल दिया, उसको करना है मुंह बधिर की तरह, उनको समझाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए केवल उस महिला को शिक्षा देने से नहीं होगा, समाज को आपको शिक्षित करने के लिए मैं समझती हूँ रश्मि जी जैसे सामाजिक संस्था को बार बार चाहे नुक्कड़ नाटक करके हो, चाहे स्कूल प्रोग्राम करके हो, चाहे गवर्नमेंट सिलेबस करने के हो, सास को शिक्षित करनी पड़ेगी और इसको स्वास्थ्य के साथ जोड़ के ही कर पाओगे आप। वही आप सामाजिक न्याय बोलोगे तो उन किसी को समझ में नहीं आएगा। स्वास्थ्य के साथ Health जोड़ के से- अगर- हेल्थ हर कोई चाहता है कि हाँ, हमारे Because health is very That important. is your foremost right to be healthy. If you are उसके not साथ a जोड़ के healthy करेंगे body, कि आप जब रहोगे ही नहीं, आपको जब गोनोरिया हो जाए या कुछ एसटीडी हो जाए, वो सब चीज किसी को पता ही नहीं, महिला को पता ही नहीं है, बताइए। ना सास को पता है, ना ससुर को पता है, ना जी। दत्तक को पता है। वो सब चीज उसमें आपको फोकस शायद हेल्थ होगा। करनी पड़ेगी कि हेल्थ मतलब मेन हेल्थ को लाके शहर में तो फिर भी पता है, गाँव में तो बिल्कुल नहीं पता। Ma'am, when I was going through the literature, I came to know that abortion is the third most common cause of maternal death. Yes. And only Yes. 20%, 22% of abortions are carried out by registered people, मतलब healthcare worker, मतलब जैसे doctors हैं, OBGYN है, या MBBS with required training है. 80% of abortion are still carried out, मतलब अपने आप track medicines लेके या through some other, पुरुष एक प्रोटेक्टर है और नर्चरर है, कौन है? एक लड़की है। लड़की। तो दोनों मिला के, जैसे एरोप्लेन कभी एक विंग से नहीं चलता है, दोनों विंग होता है। जी, सही तो बात। समाज में भी we need two wings to Two fly, wings together. right? Parallelly. So, but both the wings have to be in balance. Protector and nurturer, if they are in balance, in sync, तो समाज कितना सुंदर होगा। Absolutely. Like we have an example, like Sunita ma'am is here. She lives in a joint family. She's the director of the Gagan Leather House. She is equally giving her participation, her time, her morality, her creativity to run her business. So like she's a live example, right? We just would like to hear from you, ma'am. As a women, we are a creator. Okay, so Bless. सबसे पहले yes, we are blessed. So सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम अगर क्रिएटर हैं तो एक क्रिएटर की रोल क्या होता है. We should play that role first of all, and most of the women in this society forget that. और वो समाज की जितनी भी रीति रिवाज The customs and हाँ सब कुछ वो लोग मानते थे, बट वो लोग भूल जाते हैं एट द सेम टाइम हम लोग क्रिएटर है तो हम लोग एक्चुअली कैसे एजुकेट करें. It's not question of those education what we learn from the Absolutely. school or from what we get that diploma course and all that. उसके अलावा भी एक रहते हैं जो एजुकेशन घर से शुरू होता है. Absolutely. आप your समाज house. सेवा तो कर लेते हैं पर खुद की घर की सेवा कब करेंगे. करेंगे. तो वो वहीं से शुरू होता है. हाउ यू विल brought up your child. That is the most important thing. 68,000 women dies due to abortion. क्यों? तो फिर हम जाके मतलब समाज को क्यों दोष दें.
इट्स नॉट अ थिंग दैट एक समाज सेवी या कोई भी अपन एंटरप्रेन्योर या कोई भी मालवी भाभी या डॉक्टर या तो सानियल मैम और यू कैन हैंडल इट. We cannot do it all alone. We all ladies have all females. Charity should begin from home. Yes. घर से शुरू करना है. इंडिविजुअली हम अपनी रोल प्ले करें तो अपने आप ही समाज सुधर जाएगा. क्यों जरूरत नहीं है? Absolutely. When we talk about society, in society, I think every home built up with the women. We all have one woman in the house. So that is the basic right, basic accountability of that particular woman to educate their child equally, to make them aware about their equality rights, whether it's a son or daughter. So they are equal. So this is absolutely a very right thing, ma'am, what you said, कि हमें घर से शुरू करना चाहिए, अपने बच्चों को इक्वल राइट्स के लिए एजुकेट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए उनको कि ना तो हमारी बेटियां बेटों से ऊपर हैं और ना ही हमारे बेटे, उनको ये हक है कि वो हमारी बेटियों का अधिकार छीन सकें या उनके अधिकारों से उनको वंचित कर सकें. So I think we have today, we were supposed to have our pride, our prestige of Indore, Dr. Janak Palta Banglin ma'am, but due to her health issues, she is not with us. But we do have her wonderful message about the equality of a men and a women. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सुनीता पाटीदार, लोनेट खान, आप लोगों ने मुझे बुलाया कि मैं आज आपके बीच अपनी बात रखती कि महिला विमेनहुड, सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ विमेनहुड एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स. मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहती हूँ, वुमेनहुड इज नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव राइट्स. वुमेनहुड इज मेकिंग ए वंडरफुल जनरेशन ऑफ पीपल. माँ ही तो बच्चे को सिखाती है कि उसको, बेटी को कहती है बेटी उसका ध्यान रखेगी भाई का, बेटे के ऊपर कोई कुछ नहीं करती है. और ये जो पुराने टाइम से चला रहा है, अभी तो हमारा लीगल राइट है कि हमारा अधिकार है, हर महिला अपना बच्चा या सेक्स चाहती है या नहीं चाहती, ये उसका अधिकार है. लेकिन इस रिश्ते को ऐसा बनाया जाए कि वो पति सोचे कि इसके साथ ये करना है कि नहीं. मैं आपको आज अपने जीवन की बात बताती हूँ. मैंने 40वें साल शादी की. मेरे पति ने मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं किया. जब मैंने ये भी कहा कि मुझे बच्चे पैदा नहीं करना, ये शर्त नहीं थी. हम दोनों ने ये तय किया कि वो बरली संस्थान में आदिवासी लड़कियां मेरे बच्चे हैं, मुझे उनको पालना है. तो रिप्रोडक्शन की केवल बात नहीं है, हमें करना क्या है दोनों को मिलके. हम कोई रिप्रोडक्टिव मशीन नहीं है, हम इंसान हैं. ईश्वर ने मानवता को एक पक्षी बनाया जिसके 2 पंख हैं, दोनों बराबर एक दूसरे के सांझी शक्ति से चलेंगे, वो पक्षी उड़ेगा. ये गलत फहमी जो एक पाश्चात्य कल्चर में सिंगल मदर प्रूव करना चाहती हैं कि दे कैन डू विदाउट द मैन, मैं नहीं समझती हूँ कि ये भारत की ये है. ये शादी से पहले तय करो. शादी जिससे कर रहे हो तब सोच लो. शादी पैकेज से कर रहे हो, कौन सा पैकेज है. मेरे पति ने यूरोप, ब्रिटेन छोड़कर, अपनी काम छोड़कर मेरे साथ जीवन बिताया. मेरे हिसाब से मेरे अंडर काम करते थे. मैं डायरेक्टर थी, वो मैनेजर थे. मैं आपको बता रही हूँ कि ये रिश्ता दोनों को बनाना है. और हमारी ईगो बहुत भयानक है. मुझे लगता है जैसे ही महिलाएं ज्यादा संपन्न होती हैं, जैसे ही कमाती हैं, जैसे बड़े पद पे जाती हैं, उनको लगता है कि उनका सब वो संपन्न है, खुद कर सकती हैं, साधन संपन्न है. मुझे लगता है ये पहले तय कर लें हम, ये आदमी हमारे लायक है कि नहीं. खेल नहीं है जीवन. पति पत्नी का रिश्ता नर नारी ईश्वर ने बनाए हैं. और हम कितना शिव जी और पार्वती की बात करते हैं, राधे श्याम की बात करते हैं, सीता राम की बात करते हैं. कोई देवता ऐसा नहीं है जिसके अकेले की बात आज तक हुई है इस भारत में. तो हम सबको ऐसा बनना है, ऐसे बच्चे बनाने हैं. ये जो कुप्रथाएं हैं, ये कुप्रथाएं
ख़त्म करना होगी। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जब मैंने आदिवासी महिलाओं को सोलर कुकर ट्रेन करके उनको मिले तो उन्होंने बोला उनको सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ कि उनका बच्चा गिर जाता था जब बहुत भारी लकड़ी लेके चलती थी, लेकिन सोलर कुकर एक सुरक्षा है। फिर उन्होंने बोला हमारे साथ सबसे ज़्यादा बलात्कार बीहड़ जंगल, जो 20-20 किलोमीटर हमें 2-2, 3-3 दिन लकड़ी लेने जाना पड़ता है झाबुआ अलीराजपुर की महिलाओं को। अब हम सुरक्षित हैं। हर बात, हर पल, हमारी हर रचना, हमारा खाना पीना, रहना आपस में परामर्श से करो, शुरू से ही परामर्श से करो, ताकि बच्चे भी आपके, ये पक्की बात बता देती हूँ, जहाँ पर पति पत्नी का आपस में ठीक रिश्ता नहीं है, उनके बच्चे सारी उम्र साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। हमें सबको इस दुनिया को सुंदर बनाना है, इंदौर को स्वच्छ बनाना है, मन की स्वच्छता करनी है। रिप्रोडक्शन का राइट हमारा है। ये भी ऐसी स्वच्छता भी रिश्ते में, उस रिश्ते में भी लानी है, ये पति पत्नी के रिश्ते में। पर मैं कहती हूँ ये अकेला कोई नहीं कर पाएगा। महिला पुरुषों को लाओ बीच में। ये सारे अपने ही बैठ के झंडा वंडा लगा के विमेन डे मिला के फिर ना बेटे को समझाते हैं कि वो कैसा जवाई बनेगा, ना बेटी को बनाते हैं कि कैसी बहू बनेगी। हस्बैंड बनना अच्छा नहीं सिखाते। प्रॉपर्टी भी तो ऐसा है कि भाई को मिलती है और भाई को बहनें लिख देती हैं कि हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, भाई चाहिए। अब ऐसे लीगल राइट्स होने के बावजूद फिर भी शोषण हो रहा है बहनों का, तो बहनें लिख के देती हैं ठीक है मुझे भाई चाहिए, जमीन नहीं। अब मैं ऐसे भाई चाहती हूँ जो कहें मुझे बहन नहीं, बहन चाहिए, जमीन नहीं, बहन चाहिए। तो आप सबको बधाई देती हूँ। मैं आज आपके बीच में आ नहीं पाई, इसकी क्षमा चाहती हूँ। शुभकामनाएं। So that kid being a पुरुष प्रधान देश और being the man headed family, वो लोग इस चीज को समझे कि विमेंस के लिए उनकी हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स को समझना कितना इम्पोर्टेंट है। ना कि एक बच्चे को जन्म देना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसका अपना खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक हेल्दी महिला ही एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती है। तो ये जो आज हमने डिस्कशन किया है, आई एम श्योर कि हम इसे आगे जरूर बढ़ाएंगे और इन आवर नेक्स्ट एपिसोड वी विल टॉक अबाउट द इक्वालिटी राइट्स जो आज मैम ने स्टार्ट किया है। हम इसे जरूर, हम कोशिश करेंगे कि हम गवर्नमेंट के समर्थन पे एक लेटर लिखें, हम ऐसे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा सकें। वी विल डेफिनेटली ट्राई। आवर ऑर्गेनाइजर इज हियर, सुनीता मैम। So ma'am, I think we now have a work to do. We have an authority now. Yes. So make it a spread to our women to write them and to this program, to follow this program for us. Correct? So see you all in the next episode. With the reproductive rights, we'll end up here, but we will definitely talk the other rights for the spirit of women. Thank you so very much to grace us to be here with us. Thank you.